اس کے بعد پرنسپل ریجنل انسٹیٹیوٹ فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہمارے معزز مہمان گرامی کو اعزازی کی شیٹ پیش کریں گے. تو میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مہمان گرامی جناب سردار حیدرزمان صاحب اور بابا خدمت جناب نعمت اللہ صاحب کو یہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہیں تو بنتا ہے مسلمان. اب میں مرد کلندر کو درویش خدا مست کو دعوت دیتا ہوں خطاب کی. جناب نعمت اللہ خان صاحب سابق سٹی ناظم کراچی، بابا خدمت جناب نعمت اللہ خان صاحب. وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. قابل احترام امیر جماعت اسلامی ضلع ابٹاباد اور سرپرست اعلیٰ RISD جناب سردار حیدرزمان صاحب، ڈسٹرکٹ ناظم ابٹاباد جناب شاکر اللہ صاحب، جناب مصباح صاحب، دیگر مہمانان گرامی، میرے عزیز بھائی. سردار صاحب نے جب میرا نام لیا میں سمجھا جب یہ میری تعریف کریں گے کہ میں بلاخر کسی چیز کا احساس ہوا کہ اصل یہ جو تعریف کر رہے تھے یہ نعمت اللہ شماری صاحب کر رہے تھے، نعمت اللہ خان کی نہیں کر رہے تھے. لیکن میں نعمت اللہ خان ہوں، نعمت اللہ شماری نہیں. ناراض ان کا مشغول ہوں، ان کی جذبات کا، ان کے احساسات کا انہوں نے میرے لیے آپ کے سامنے رکھی. 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ حقیقتاً جو دنیا کی نون ہسٹری ہے میرے خیال کے مطابق، اسسمنٹ کے مطابق یہ سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا زلزلہ، سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑی کیٹاسٹرافی اور سب سے بڑا ڈیزاسٹر. 35 لاکھ افراد کا متاثر ہونا اور 1 لاکھ افراد کا جان شہادت مشکل اور اتنی ہی تعداد میں زخمی اور معذور. یہ شاید ہی کسی بڑے زلزلے کے اندر یہ واقعات رونما ہوئے. زلزلہ تھا حقیقتاً جو اس کے متاثرین ہیں بالخصوص وہ لوگ جو اپنے لخت جگر سے محروم ہوئے، جو اپنے والدین سے محروم ہوئے، جو اپنے بھائی بہنوں سے محروم ہوئے. یقیناً ان کے لیے یہ بہت ہی رنج اور دکھ کا موقع تھا اور سب نے ان کے ساتھ ہمدردی کی. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، وہ اس کو محسوس کرتا ہے، وہ رنجیدہ ہوتا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں اور کافی عرصے تک کی کیفیت رہتی ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم، ان کا جب انتقال ہوا، رات کو بلایا گیا، آپ نے ان کو
अपनी गोद में लिया, बहुत छोटे बच्चे थे, और आपकी आंखों से आंसू बहे। साहब कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आपसे पूछा, या रसूलल्लाह, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहा, बाप बेटे का गम है, और ये अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ये चीज पदियत की है कि वो अपने जो करीब लोग होते हैं, या बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, बीवी होती है, वालिदैन होते हैं, उन सब की मौत के ऊपर रंगीन होता है। उस गम के अंदर उसके आंसू नहीं निकलते। मैं भी इंसान हूँ, ये आंसू जो हैं ये फितरत के मुताबिक है, वो अल्लाह ताला ने रखी है इंसान के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ मैं सब्र करता हूँ, मैं अल्लाह ताला की रज़ा पाता हूँ। अल्लाह ताला की मर्जी अगर यही थी तो आमन्ना सद्दक़ना कहता हूँ। इसी तरह हमने भी तमाम मुतासिरीन के साथ, रवायतीन के साथ इज़हार हमदर्दी भी किया, उनके पास भी गया, उनमें शरीक हुए। लेकिन मैं तो बात कहना चाहता हूँ यह है कि ये ज़ल्ज़ला बेशक कुछ हुआ नहीं है, अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह ताला खालिक कायनात, कायनात में फैसले वो करता है और उसी के फैसले नाफिज होते हैं, किसी और इंसान के फैसले नाफिज नहीं है। अल्लाह ताला ला शरीक है, वादहू ला शरीक है। कायनात के निज़ाम को संभाले हुए है, वो चला रहा है हर जमां, कोई इसमें शरीक नहीं है। अल्लाह ताला के हुकूक, उसके इख्तियारात, उसकी ज़ात और उसकी सिफात में यकता है, इसमें भी कोई उसका शरीक नहीं। जिंदगी और मौत का देने वाला अल्लाह कब किसी को जिंदगी देना है और कब उसको उठा लेना है और किस अंदाज में उठाना है, किस नौइयत की मौत उसको देना है, ये सारे फैसले अल्लाह ताला करता है। और ये भी हमें मालूम है, कुरान करीम में भी इसका जिक्र है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं बंदों पर जुल्म नहीं करना चाहता, बंदों पर जो कुछ बीतती है वो अल्लाह का जुल्म नहीं होता। अल्लाह ताला अपनी मसाले और अपनी हिकमत के मुताबिक फैसले करता है। ये ज़ल्ज़ले, ये तूफान, ये सैलाब, ये कहर, ये ताउन, सारी चीजें अल्लाह के हुक्म से आती हैं। अल्लाह ताला फैसले करता है। हम अल्लाह की मखलूक है, बल्कि कायनात की हर चीज अल्लाह की मखलूक है। वो खालिक है, वो खालिक की हैसियत से, मालिक की हैसियत से, हुक्मरान की हैसियत से, मुक़्तदर की हैसियत से उसका ये इख्तियार है कि वो जब चाहे जो फैसला करे। हमें बंदों की हैसियत से, मखलूक की हैसियत से अल्लाह ताला के फैसलों के अंदर दखल-अंदाज़ी करने का हक नहीं है, हमें तफसील करने का भी हक नहीं है। ये जरूर है कि हमें सिर्फ अल्लाह ताला से ये करना, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तूने जो कुछ भी फैसला किया है हम उस पर राजी हैं, हमें सिर्फ तेरी रजा चाहिए। हमें अपनी हुदूद का दरा करना चाहिए, बंदों की हैसियत से, मखलूक की हैसियत से, कि हमारे हुदूद क्या है और कहाँ तक हम हमारे हुदूद चलते हैं और उसके बाद से कहाँ अल्लाह ताला की हुदूद शुरू हो जाती है। ये सारे ज़ल्ज़ले, ये तूफान, ये सैलाब अल्लाह ताला के हुदूद हैं। और ये तो अल्लाह ताला ने जब
आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं की थी, और उस वक्त फरिश्तों की मजलिस में आपने ये ऐलान किया था। कुरान की इब्तिदाई आयात में है कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते जो भी शोक मखलूक होते हैं उनके सामने ये ऐलान हुआ, उनकी मजलिस में ये ऐलान हुआ, उनको उनके जहन में वसवसा पैदा हुआ, और उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला तेरी हम तो सना बहुत कर रहे हैं, लेकिन तू क्यों ऐसी मखलूक को पैदा कर रहा है? तो यकीनन इख्तियारात देगा खलीफा की हैसियत से, और वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी करेगा। उस वक्त भी अल्लाह ताला ने कह दिया था कि इन्नी आलम मा ला तालमून, जो कुछ मैं जानता हूं तो नहीं जानता। और उसके बाद उस इंसान ने, जो इंसान अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है, उसने हकीकतन जमीन में फसाद भी बर्पा किया, खोरेजी भी की, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसको मनसब दिया था अशरफुल मखलूकात का, उसने उसको भी निभाया। ज़लज़ला इसके मनफी पहलू भी हैं, इसका जिक्र यहाँ पर हुआ है, तकरीबन हर मजलिस में उसका जिक्र होता है और होना चाहिए, लेकिन कुछ उसके मुस्बत पहलू भी हैं, उनको भी अपने जहनों के अंदर हमें मुस्तहज़र रखने की जरूरत है। इस ज़लज़ले के अंदर 1 लाख अफराद हलाक हुए, हलाक नहीं हुए हैं, वो शहीद हुए हैं, वो शहादत के दर्जे पर फायज हुए। किसे मालूम कि वो 1 लाख आदमी यहाँ अगर शहीद ना होते तो अपनी फितरी मौत पर शहादत के दर्जे पर फायज नहीं होते। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन लवाहिकीन जिनके वो नूर नजर क्लियर थे, उनको अल्लाह ताला ने इस्तिकामत का तौफीक, उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहरा किया।